Hello young doctors, today we will discuss mole concept and the question that have been asked from this topic. So the question arises, what is mole? So 1 mole is a number which is nothing but equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 particles. Now these particles can either be ions, this can be atoms, or this can be molecule. For example, if we are talking about 1 mole of helium, then this value will be equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms of helium. And if we are talking about 1 mole of oxygen, then this will be equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules of oxygen. Now to calculate the mole, we have 3 formula. So the number of moles, this value is equal to the given mass given divided by the molar mass or the mass of 1 mole. The second formula is the volume which is given to us and the divided by molar volume or the volume of 1 mole of gas. This value is always equal to 22.4 liter at STP conditions, that is standard temperature pressure condition 0 degree Celsius at 1 atmospheric pressure. This value is also equal to 22400 milliliters or 22400 cc. The third formula talks about the molecules. Number of moles is equal to the molecules which are given to us divided by the number of molecules present in 1 mole, that is 6.022 into 10 raised to the power 23. Or we can say the molecules are atoms that are given to us. So we'll use these 3 formulae to calculate which one of the following has maximum number of atoms. 1 gram of silver, 1 gram of magnesium, 1 gram of oxygen and 1 gram of lithium. Atoms उसमें सबसे ज़्यादा होंगे जिसमें number of mole सबसे ज़्यादा होंगे, because 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 particles. और mole जितने ज़्यादा particles या atoms या molecules भी उतने ही ज़्यादा. So इन सब में हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, mass. So हम mass वाला formula लगाएंगे. Number of moles is equal to given mass divided by the molar mass or the mass of 1 mole. In first case, the number of moles will come out to be mass given is 1 and silver के लिए molar mass is 108. इतने moles आ गए. अब हमें पता है number of atoms in 1 mole. Number of atoms in 1 mole is number of atoms in 1 mole. This value is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms. And we were asked number of atoms in 1 upon 108 mole. So इसको multiply कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1 upon 108 into 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms. सेकेंड वाले ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे पहले, विच इज़ मास अपॉन मोलर मास. सो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मास इज़ 1, मैग्नीशियम के लिए मोलर मास इज़ 24. और अब इसमें निकालेंगे इतने मोल्स में नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 1 अपॉन 24 इतने मोल्स और 1 मोल का atoms, that is 6.022 into 10 raised to the power 23. थर्ड वाले ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल्स, मास that is 1, मोलर मास that is 32. अब इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स. तो अगर हम सिर्फ इतना लिखें 1 अपॉन 32 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 into 10 raised to the power 23, तो ये निकल कर आएंगे मॉलिक्यूल्स, बिकॉज क्वेश्चन में O2 दिया है. O2 इज़ ए मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है ऑक्सीजन के, 2.
सो वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 2. तो इतने क्या आ जाएंगे? एटम्स. अगर मॉलिक्यूल बोला होता फिर हम 2 नहीं लिखते, सिर्फ इतना रहता. थर्ड ऑप्शन इज 1 gram of lithium. So the number of moles in this case will be mass 1 gram divided by molar mass, that is 7. And number of atoms, इसमें आ जाएंगे number of moles 1 by 7 and the number of atoms in 1 mole, that is 6.022 into 10 raised to the power 23. अब सारे एटम्स को कंपेयर कर लेते हैं, चारों ऑप्शंस को. 2 16 या 32. चारों ऑप्शंस में अगर हम देखें तो दिस वैल्यू इज सेम. एंड यहाँ पे न्यूमरेटर 1 1 1 एंड 1. सो वी नीड टू कंपेयर दी डेनोमिनेटर्स. डेनोमिनेटर जहाँ पे सबसे कम होगा वो नंबर उतना ही ग्रेटर होगा. सबसे कम डेनोमिनेटर है ऑप्शन 4 में. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स विल बी इन 1 gram ऑफ लिथियम, followed by oxygen, followed by magnesium, followed by silver. In which cases number of molecules of water maximum? यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 से. फर्स्ट वाले केस में 18 ml ऑफ वाटर. यहाँ पर अगर वाटर वेपर दिया होता तब हम मोलर वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज़ करते. यहाँ पे 18 ml ऑफ वाटर दिया है, वाटर, सो दैट इज़ वाई वील यूज़ द फार्मूला ऑफ मोलर मास. एंड उसके पहले हमें यहाँ पे मास निकालना पड़ेगा. यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा डेंसिटी वाला. डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, which implies that mass is equal to density into volume. डेंसिटी वाटर की होती है 1 gram per milliliter एंड वॉल्यूम दिया है 18 milliliter. सो मास विल बी इक्वल टू 18 gram. 18 gram में अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो यह आ जाएगा मास अपॉन मोलर मास. मास कितना दिया है? 18 gram डिवाइडेड बाय मोलर मास वाटर का कितना होता है? H2O है, 2 हाइड्रोजन के एंड 16 ऑक्सीजन के. 16 + 2 18 gram. सो मोलर मास ऑफ वाटर इज़ 18 gram. नंबर ऑफ मोल्स आ गए. अब इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, दिस इज़ 1. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर into 10 raised to the power 23 molecules of water. B option. Number of moles is equal to mass upon molar mass. Mass given is 0.18 gram and molar mass of water is 18 gram. So यहाँ से 2 पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा 100. 18 1s are 18, so this is equal to 1 divided by 100. And number of molecules of water in these much moles, number of molecules is 1 by 100, that is number of moles multiplied by Avogadro's number 6.022 into 10 raised to the power 23. C option में वॉल्यूम दिया है. So number of moles is equal to volume which is given at STP 0.00224 and molar volume at STP which is 22.4 liter. So यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 and 5 zeros we'll erase. डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 raised to the power 5 एंड यहाँ से 1 पॉइंट we'll erase. न्यूमरेटर में आ जाएगा 10 raised to the power 1. दिस विल गेट कैंसल्ड एंड ये 10 raised to the power, we'll write this as 1 upon 10 raised to the power 5 minus 1 because अगर हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें so value will get subtracted. This will be equal to 1 upon 10 raised to the power 4. इसमें अगर हमें निकालने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
So number of moles multiplied by Avogadro's number, which is 1 upon 10 raised to the power 4 multiplied by 6.022 into 10 raised to the power 23. In fourth option इन्होंने हमें डायरेक्ट पहले मोल ही दे दिया है, तो हमें मोल निकालने की ज़रूरत नहीं है. वील सिंपली कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which is equal to number of moles multiplied by Avogadro's number 6.022 into 10 raised to the power 23. ये वैल्यू चारों ऑप्शंस में बराबर है, तो हम कंपैरिजन करेंगे इन वैल्यूज़ की बेसिस पर. 1 upon 100, 1 upon 10,000, दिस इज़ 1 upon 1000. ये न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो पावर विल गेट इनवर्स. -3 है तो 10 रेज़ के बाद 3 हो जाएगा. सो दिस इज़ 1 upon 1000. इन चारों में अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 1. सो 18 ml of water will have maximum number of molecules followed by this 0.18 gram of water followed by this 10 raised to the power -3 mole of water followed by this 0.00224 liter of water vapors. Suppose the elements X and Y combine to form two compounds XY2 and X3Y2. When 0.1 mole of XY2 weighs 10 gram and 0.05 mole of X3Y2 weighs 9 gram, the atomic weights of X and Y are. इनके atomic weights नहीं दिए, तो let us suppose the atomic weight of X as small x and Y as small y. यहाँ पे आपको 0.1 मोल का वेट दिया है 10 ग्राम. सो ये 1 मोल का नहीं है, ये मोलर मास नहीं है, ये गिवन मास है. अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे नंबर ऑफ मोल्स का. दोनों ही केसेस में देख लेते हैं, एक XY2 में एंड दूसरा X3Y2 में. नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज हाउ मच? मास अपॉन मोलर मास. मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास. ओनली दिस फॉर्मूला इज गेटिंग यूज्ड इन दिस क्वेश्चन. नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 0.1, मास दिया है 10 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास हो जाएगा इनका टोटल मास. x का मास इज़ x एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ x आर 1. y का मास इज़ y एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ y आर 2. Similarly in this case 0.05 moles are given एंड इसका मास दिया है 9 ग्राम अपॉन मोलर मास हो जाएगा x एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ x दैट इज़ 3, मास ऑफ y, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ y 2y. ये यहाँ पे है डिवाइड, वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई. 0.1 इंटू x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. 0.05 इंटू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9. ये यहाँ पे है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. 10 डिवाइडेड बाई 0.1. ये यहाँ पे है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. 9 डिवाइडेड बाई 0.05. ये डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमिनेटर में भेजेंगे, पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाके लग जाएगा 10. सो दिस इज़ 10 इंटू 10. और यहाँ पे 2 हम ज़ीरो हटाएंगे, ऊपर जाके 2 ज़ीरो लग जाएंगे. 5 के टेबल में 100 कब आता है? 5 2 ज़ा 0 ज़ा. सो विच implies x plus 2y is 100 and 3x plus 2y is 9 2 is 18, 180. यहाँ से हम 2y की वैल्यू निकाल लेते हैं 100. x यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, माइनस हो जाएगा x. और ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे. 3x प्लस 2y की जगह रखेंगे 100 माइनस x इज इक्वल टू 180. 3x माइनस x इज 2x. 2x प्लस 100 इज इक्वल टू 180. सो 100 यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस. 180 माइनस 100. सो 2x इज इक्वल टू 80 एंड x विल बी इक्वल टू 80. 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड. 80 बाई 2 दैट इज़ 40. 40 को यहाँ पे पुट कर देंगे. 2y इज इक्वल टू 100 माइनस 40. So 2y will be equal to 60 and y will be equal to 60. 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, दैट इज़ 30, विच इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई 40 एंड y की वैल्यू आ गई 30. सो इन चारों ऑप्शंस में ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर 40 30.
Next question is very easy and it is theoretical question. Avogadro number is changed from 6.022 into 10 raised to the power 23 to 6.022 into 10 raised to the power 20. This would change. एवोगैड्रोस नंबर ही चेंज कर दिया अगर, तो क्या चीज़ चेंज होगी इन चारों में से? सबसे पहले जब हम एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू को मानकर चलते हैं कार्बन की, कि कार्बन का मास इज़ 12 AMU and 1/12 the mass of one atom of carbon 12 is 1 atomic mass unit. कार्बन को हमने स्टैंडर्ड मान लिया था. तो फर्स्ट ऑप्शन इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन. पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं 1 मोल का मास कितना है. 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन दैट इज मोलर मास कितना होता है इसका 12 ग्राम. 1 मोल का वेट इतना होगा 12 ग्राम. 1 मोल में कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल होते हैं, कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन का वेट कितना होगा 12 ग्राम. 1 मोल का तो यही मतलब है, 1 मोल इज 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23. यहाँ से अगर हम निकालें 1 एटम ऑफ कार्बन का वेट तो वो कितना आ जाएगा 12. ये नंबर यहाँ पे 1 के साथ क्या था मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23. ये हो जाएगा 1 एटम का वेट, 1 एटम का. अब अगर हमने एवोगैड्रो नंबर चेंज करके इतना कर दिया है तो इतने एटम्स का कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल. 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 20 एटम्स ऑफ कार्बन. दिस विल बी इक्वल टू, अब पहले इससे नंबर क्या कर रहा था डिक्रीज, तो हमने राइट हैंड साइड कर दिया डिवाइड. अब 1 से नंबर क्या कर रहा है इंक्रीज, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 multiplied by 6.022 into 10 raised to the power 20. This value will get cancelled. 12 into 10 raised to the power 20, bases are same, power will get subtracted because this is division, into 23, so this will be equal to 12 into 10 raised to the power minus 3 gram. So if Avogadro number is getting changed, the mass of 1 mole of carbon will also change. So the option is first option. Next is ratio of chemical species. That cannot be the answer because इसका Avogadro number से तो कोई रिलेशन नहीं है. रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर, यानी कि एलिमेंट्स का रेशियो चेंज हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इज डेफिनेट और फिक्स्ड. डेफिनेशन ऑफ मास, मास की डेफिनेशन भी चेंज नहीं हो सकती इससे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन. मॉलिक्यूल्स निकाल लें. सो फर्स्टली वील कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल भी उतने ही ज़्यादा. नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट एंड सेकंड केस में निकालने की ज़रूरत है बाय फॉर्मूला ऑफ मास. नंबर ऑफ मोल्स इज मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास. So in first case, number of moles will be equal to mass, that is 1.8 given mass divided by molar mass of water which is 18. यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे लग जाएगा 10, 18 से 18 कैंसिल, so this will be equal to 0.1 mole. Number of molecules in 1 mole it is 6.022 into 10 raised to the power 23. So in 0.1 mole this will be 0.1 into 6.022 into 10 raised to the power 23. Now in case B, number of moles कितने आ जाएंगे, मास कितना दिया है 18 divided by molar mass is 18. 18 ones are 18, so number of moles is 1. And number of molecules in 1 mole is 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules. Now in case C, number of moles are already given, so we need to calculate number of molecules only. Number of molecules in 1 mole is 6.022 into 10 raised to the power 23, so 18 moles में कितना हो जाएगा multiplied by 18.
डी ऑप्शन में इन्होंने पहले ही दे दिया मॉलिक्यूल्स, कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. सो अगर हम इन फर्स्ट 3 केसेस में देखें तो दिस नंबर इज सेम. मैक्सिमम वो वाला होगा जिसमें ये वाला नंबर मैक्सिमम दिया है. ये तो आपको पता है दिस इज़ वेरी मच लेस एज कम्पेयर टू अदर 3. सो बाकी 3 ऑप्शंस में देखें तो 0.1, 1 एंड 18. सो 18 इज़ ग्रेटर. सो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी मैक्सिमम इन 18 moles of water, option C. Followed by B, 18 grams of water. Followed by A, 1.8 gram of water. Followed by D, 18 molecules of water. So the correct option is C. Mixture of gases contain hydrogen and oxygen gases in the ratio of 1:4, which is weight by weight ratio. What is the molar ratio of two gases in this mixture? So गिवन मास इसका दिया है, मास का रेशियो हाइड्रोजन में 1, ऑक्सीजन के लिए 4, 1:4 दिया है. सो लेट अस टेक द सिंपलेस्ट वैल्यू, दैट इज मास ऑफ हाइड्रोजन, लेट अस टेक इट एज 1 gram, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन लेट अस टेक इट एज हाउ मच, 4 gram. रेशियो वाले क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करें. दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ रेशियोज. वी नीड टू टेक द desired value from here, and the most convenient one we'll take. What is the molar ratio of two gases in this mixture? Moles का ratio बताना है. So number of moles is how much? Mass upon molar mass. Mass of hydrogen is given 1. Molar mass of hydrogen is 2. So 1/2 number of moles of hydrogen. And for oxygen it is number of moles of oxygen. Mass given 4 gram divided by molar mass, 16 2s are 32. 4 1s are 4, 4 8s are 32. So this is 1/8. So we need to calculate molar ratio of hydrogen is to oxygen. So in case of hydrogen, moles is 1/2. Oxygen के केस में it is 1/8. Simplest whole number में convert करने के लिए दोनों साइड हम मैक्सिमम LCM से डिवाइड कर लेंगे. 2 and 8 का LCM is 8. So we'll multiply both numbers by 8. 2 4s are 8, 8 1s are 8. So the ratio comes out to be 4:1. Option B. Which has the maximum number of molecules among the following? फिर से इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 into 10⁻23 से. So first वाले केस में number of moles is mass given divided by molar mass, or the mass of 1 mole. Number of moles will be equal to mass given is 44 gram divided by molar mass of carbon dioxide. कार्बन का मास is 12 and ऑक्सीजन का होता है 16, 16 2s are 32. So 32 plus 12 is how much? 44 gram. So molar mass is 44. इसको डिवाइड करो, 44 1s are. Number of moles is 1. Number of moles is 1. So number of molecules कितने आ जाएंगे? 1 into 6.022 into 10⁻23 molecules. Option B. Number of moles is how much? Mass upon molar mass. Mass कितना दिया है? 48 gram divided by molar mass of ozone. 16 into 3, that is 48. So 48 1s are 48. So number of moles is 1. So here also number of molecules will be equal to number of moles multiplied by Avogadro's number. Option C. 8 gram of hydrogen. Number of moles, mass upon molar mass. Mass दिया है 8. Molar mass of hydrogen 1 2s are 2 gram. 2 4s are 8. So 4 moles. And number of molecules in 4 moles will be number of moles multiplied by Avogadro's number. This will be the number of molecules in 8 gram of hydrogen. Option 4th. Number of moles, mass upon molar mass. Mass is 64 gram divided by molar mass of sulfur dioxide. Sulfur का होता है 32. ऑक्सीजन का भी होता है 32. 32 2s are 64. Sorry, ऑक्सीजन का होता है 16. 16 2s are how much? 32. So this will be
64. So this comes out to be 64. 64 by 64 is how much? Number of moles is 1. Number of moles is 1, so number of molecules. This will be 1 into 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules. मॉलिक्यूल्स पूछा है इसलिए हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे. अगर एटम पूछा होता फिर हम देखते कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है. यहाँ पे देखो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है, सो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता. यहाँ पे 2 एटम्स है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता. यहाँ पे 3 एटम्स है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता. यहाँ पे भी 3 एटम्स है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता. लेकिन क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड अस मॉलिक्यूल, सो दिस विल बी दी आंसर्स. अब मैक्सिमम पूछा है तो ये वाली वैल्यू तो सब जगह सेम है, सो वील कंपेयर बाय द फर्स्ट नंबर्स. 4 इज द मैक्सिमम नंबर कमिंग आउट, सो C will be our option. 8 gram of hydrogen will have the maximum number of molecules followed by A, B and C all. Number of atoms in 0.1 mole of triatomic gas is. The gas is triatomic. Let us assume it to be X3. Triatomic gas है और इन्होंने मॉलिक्यूल नहीं पूछा है, एटम्स पूछ लिया है. तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज हाउ मच? इट इज़ ऑलरेडी गिवन 0.1 मोल. एंड यहाँ पे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे. दैट इज़ ईजी टू कैलकुलेट. 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 raised to the power 23 molecules. They have not asked us number of molecules, they have asked us number of atoms. 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 3. तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो जाएंगे? वील जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 3. 10 raised to the power 23 multiplied by 3. So 0.1 into this value, this will be 0.6022 into 10 raised to the power 23 multiplied by 3. Now 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 0s are 0 and 3 6 are 18. 1 2 3 4. This will be the answer. That is option B. Maximum number of molecules is present in. Again we'll calculate number of moles. फर्स्ट केस में आपको हाइड्रोजन गैस दिया है तो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. नंबर ऑफ चारों ऑप्शंस में गैस दिया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला यूज़ होगा गैस वाला. इट इज़ वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम विच इज़ 22.4 लीटर्स. फर्स्ट वाले केस में देख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे. नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वॉल्यूम गिवन 15 लीटर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर. तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स. दिस वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय 22.4. दिस वैल्यू इज समवॉट इक्वल टू 0.669. इतने मोल्स आ गए. अब इसमें वी नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 raised to the power 23. सो 0.669 मोल्स में कितने होंगे? 0.669 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर. ऑप्शन बी. नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम इज हाउ मच? 22.4. दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.223. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं. 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते? 6.022 इंटू 10 raised to the power 23. तो 0.223 में कितने हो जाएंगे? 0.223 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर. ऑप्शन सी में सीधा मास दिया है, सो नो नीड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम और यूज़ द मोलर वॉल्यूम फॉर्मूला. वी विल सिंपली यूज़ द फॉर्मूला फॉर मास. नंबर ऑफ मोल्स इज मास गिवन divided by molar mass और mass of 1 mole. नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे मास 0.5. मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1 into 2 दैट इज़ 2. अब इसमें निकालेंगे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है? ये समवॉट अराउंड 0.25 और ये हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर into 10 raised to the power 23. Now in option D, we need to first calculate number of moles.
Number of moles is mass given, that is 10 gram, divided by molar mass of oxygen, 16 2s are 32 grams, which is equal to 0.312. Now we need to calculate number of molecules. Number of molecules आ जाएंगे moles. 1 mole में कितना होता है? Number of molecules this much. So 0.312 में कितने हो जाएंगे? 0.312 multiplied by 6.02 into 10 raised to the power 23. ये वैल्यू सब जगह बराबर है, कंपैरिजन ही करना है, सो वील कंपेयर बाय दिस. इसमें अगर आप देखो तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 0.6, 0.2, 0.2 एंड 0.3. 0.6 इज ग्रेटर, so A will have maximum number of molecules, followed by D, followed by C, followed by B. B में सबसे कम होंगे और A में सबसे ज़्यादा होंगे. Which has maximum molecule? Again we need to calculate the number of moles, and in all the cases the mass is given, so we'll use the formula of number of moles is mass upon molar mass. In first case, number of moles is mass 7 gram divided by molar mass of N2. नाइट्रोजन का मास इज 1 एटम का 14, 2 का कितना हो जाएगा? 14 इंटू 2 दैट इज 28. सो 7 बाय 28. 7 1 द 7, 7 4 ज 28. सो 1/4 मोल्स. एंड इसमें अगर हम निकालें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो दिस विल बी moles multiplied by Avogadro's number, 10 raised to the power 23 molecules. In option B, firstly we'll calculate number of moles, which is mass 2 gram divided by molar mass of H2, 1 into 2 that is 2. So this is 1 mole, and number of molecules will be equal to 1 into 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules. In option C, the number of moles will be equal to mass given, which is 16 gram divided by molar mass of NO2. Nitrogen का mass is 14, oxygen का mass is 16 multiplied by 2 atoms are given, so 14 plus 32, this comes out to be 46. And number of molecules will be equal to mass upon, number of molecules is number of moles, 16 upon 46 multiplied by Avogadro's number. In option D, number of moles is mass upon molar mass. Mass कितना दिया है? 16, and molar mass of oxygen is 16 into 2 that is 32. 16 1s are 16, 16 2s are 32. So number of molecules यहाँ पर आ जाएंगे, number of moles 1/2 multiplied by Avogadro's number, 10 raised to the power 23. Now this value in all the 4 options are equal. We need to compare by comparing this value. ये जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल भी सबसे ज़्यादा वहीं पे होंगे. A, C and D are all 3 are what? Fractions. Whereas B is not a fraction, it is 1. So in B, that is 2 gram of hydrogen, maximum number of molecules are present. So correct option is option B. Specific volume of cylindrical virus particle is given. Radius and length are also given. Avogadro's number is given. We need to calculate molecular weight. Molecular weight is mass of or the weight of 1 mole of substance. पूरे 1 मोल का निकालना है. तो पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है. स्पेसिफिक वॉल्यूम इज 6.02 into 10 raised to the power -2 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम. रेडियस दिया है 7 एंगस्ट्रॉम, विच इज़ 7 into 10 raised to the power -8 centimeters. And length given is 10 angstrom, which is 10 into 10 raised to the power -8 centimeters. अब हमें निकालना है, पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं वॉल्यूम. सिलेंडर का वॉल्यूम इज़ πr²L. पाई इज़ हाउ मच? 22/7. रेडियस गिवन इज 7 into 10 raised to the power -8 square, and length given is 10 into 10 raised to the power -8. This will be 22/7. 7 square is 7 into 7. 10 raised to the power 8 2s is 16.
base is same, power will get added 1, this is minus 8. 7 7 get cancelled, 22 into 7, base is same, power will get added 8 minus 1 is 7, साइन लगेगा बड़े का, that is minus 7, plus minus again minus, base is same, power will get added. This will be 7 2s are 14, 7 2s are 14 and 15, 10 raised to the power minus 23. वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट हम निकालेंगे अगर एक वायरस पार्टिकल का वेट, तो वो आता है बाय फॉर्मूला वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम. यू कैन ऑल्सो जज बाय द यूनिट्स दैट आर गिवन. यहाँ पे सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम एंड दिस इज सेंटीमीटर क्यूब. जस्ट इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर ओनली ग्राम में आएगा, तो वो भी वेट आएगा. तो हम यूनिट से भी जज कर सकते हैं. वॉल्यूम इज हाउ मच, 154 into 10 raised to the power minus 23 divided by specific volume is 6.02 into 10 raised to the power minus 2. Answer will come in gram. Now we are not asked the weight of one virus particle but the weight of 1 mole, that is 6.022 into 10 raised to the power 23. So this is weight of one virus particle. एक मोल का चाहिए तो इसको मोल के पार्टिकल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. minus 23 divided by 6.02 into 10 raised to the power minus 2 multiplied by mole, that is 6.022 into 10 raised to the power 23. This and this will get cancelled. 154 into 10 raised to the power minus 23 plus 23, this is minus here, इसको न्यूमरेटर में भेज देंगे. This will be minus minus 2. This will get cancelled. 154 into 10 raised to the power minus minus is plus 2. So this will be 15400 gram. But we are asked in kilogram. So we'll divide it. So we'll divide this value by 1000. छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं. तो 2 zeros से 2 zeros कैंसिल. आंसर विल बी 15.4 kg per mole. This will be the answer, that is option A. Number of atoms in 4.25 gram of ammonia is. So firstly यहाँ पे भी हम निकालेंगे number of moles. Number of moles is mass 4.25 divided by molar mass. NH3, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का 1 into 3 is 3, तो यहाँ जाएगा 17. हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल निकालना बहुत आसान है. जस्ट क्या कर देना है, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23. अब इन्होंने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, इन्होंने नंबर ऑफ़ एटम्स पूछे. तो नंबर ऑफ़ एटम्स इज इक्वल टू, अगर आप देखो 1 NH3 मॉलिक्यूल, इसमें कितने एटम्स है, 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का एंड 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के. टोटल कितने एटम्स है 4. तो जब 1 मॉलिक्यूल में 4 एटम्स है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे एटम्स. सो दिस होल नंबर विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 4. इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 4 द आंसर कम्स आउट टू बी 17. सो 17 by 17 इंटू 6.022 इंटू 10 raised to the power 23. So this will be equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms. So answer is option D. Hemoglobin contains 0.334% of iron by weight. Molecular weight of hemoglobin is approximately 67200. Number of iron atoms present in one molecule of hemoglobin. तो हीमोग्लोबिन में 0.334% आयरन है. तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ आयरन विच विल बी प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन. कितने परसेंट है, 0.334%. परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करेंगे 100 से. परसेंट ऑफ व्हाट, 67200. ये टोटल था. इसका 0.334% क्या है, सिर्फ आयरन है. 2 zeros से 2 zeros क्या हो जाएंगे कैंसिल. इसको अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई, सो आंसर विल बी समवॉट अराउंड 224.45. तो इतना अमाउंट आयरन प्रेजेंट है. अब हमें नंबर ऑफ़ आयरन एटम्स बताने हैं. नंबर ऑफ आयरन एटम्स, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर. अब देखो टोटल अमाउंट आयरन कितना है, इतना, और एक एटम का वेट कितना होता है 56. तो अगर हम इन दोनों को करेंगे डिवाइड, ये है सारे एटम्स का वेट और ये एक एटम का वेट.
इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी नंबर ऑफ एटम्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. Number of moles of oxygen in 1 liter of air containing 21% oxygen by volume under standard conditions is. So नंबर ऑफ मोल्स निकालने ऑक्सीजन के, वॉल्यूम दिया है 1 लीटर और 1 लीटर में 21% ऑक्सीजन है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 21%. परसेंट को नंबर में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 100. और वॉल्यूम कितना दिया है टोटल 1 लीटर. 1 लीटर्स मीन हाउ मच मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर. 20 से 20 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 210 मिलीलीटर. यह आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. अब अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ मोल्स, क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इज वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम. वॉल्यूम की टर्म्स में कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम. सो दिस वैल्यू इज सम हाउ इक्वल टू 1 के नियर अबाउट आएगी. यह आ जाएगी 0.0093 मोल्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन इज. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने, इसका मास दिया है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास. मास इज 4.2 एंड एजाइड आयन के लिए अगर हम मोलर मास निकालें तो इट इज़ 14 × 3 42. पॉइंट हटाया, नीचे लग जाएगा एक 10. 42 वन सा, सो दिस इज इक्वल टू 1/10 विच इज़ 0.1 मोल. नाउ नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. आ गए. अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं. एजाइड आयन के कितने हो जाएंगे, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ एजाइड आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5. और 3 नाइट्रोजन है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने आ जाएंगे 5 × 3 15. एंड माइनस का साइन है, माइनस मीन इट इज़ गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज 5 3 15 + 1 16 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन एजाइड आयन. अब एक मॉलिक्यूल में इतने हैं तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे. सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल will be equal to 0.1 × 6.022 × 10⁻23 multiplied by 16. So this value is 1.6 into this value they have written as Na. So we'll also write it as Na. So the correct answer is option C. Number of gram molecules of oxygen in 6.02 × 10⁻24 CO molecules is. So firstly we'll need to calculate number of moles. Moles given 6.02 into 10⁻24 divided by Avogadro's number. So this and this will get cancelled. 10⁻24 minus 23, answer is 10⁻1. CO एक complete molecule है. इसमें C के भी एटम्स होंगे, O के भी एटम्स होंगे. 1 मोल CO में 1 मोल C एटम्स हैं और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं. 10 मोल्स हैं तो 10 मोल में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे 10. अब एटम्स 10 है तो मॉलिक्यूल 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल बी 10/2 दैट इज़ 5. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है और इसमें ऑक्सीजन के एटम्स पूछे. पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं. मास 4.4 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज़ 44 ग्राम. इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16 2 से 32, दिस इज़ 44 ग्राम. एक पॉइंट हटेगा, 44 डिवाइडेड बाय 44 × 10, दिस विल बी इक्वल टू 0.1 मोल. मोल आ गए. अब आप देखो 1 मोल ऑफ CO2 में 1 मोल ऑफ CO2 में 1 मोल है कार्बन एटम्स का
एंड 1 मोल है ऑक्सीजन। O2 क्या होता है? मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का। लेकिन अगर एटम पूछा हो तो एटम, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते, तो 1 into 2 मोल हो जाएंगे ऑक्सीजन एटम्स। दिस यू नीड टू रिमेंबर। अब 1 मोल में 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 0.1 मोल में कितने हो जाएंगे? 1 से 0.1 में नंबर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई करने पर आएगा, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। सो आंसर इज व्हाट? 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। आंसर इज रिटन इन मोल। 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? एवोगैड्रोस नंबर 6.022 into 10 raised to the power 23. This is how much? 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 zeros are 0 and 2 6 are 12. 1 2 3 4, 1 2 3 4. This is 10 raised to the power 23. So answer is option A. 1 centimeter cube N2O at NTP contains एटम्स, मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन बताने। तो फिर से हम यहाँ पे निकाल लेंगे पहले नंबर ऑफ मोल्स। इस बार वॉल्यूम के टर्म्स में गिवन वॉल्यूम इज़ 1 cc, मोलर वॉल्यूम इज़ 22400 cc। दिस इज़ नंबर ऑफ मोल्स। अब इन नंबर ऑफ मोल्स में निकालने हैं पहले मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी 1/22400 multiplied by Avogadro's number into 10 raised to the power 23. This will be the number of molecules. Next we need to calculate number of atoms. तो N2O में कितने एटम्स हैं? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? एक ऑक्सीजन के, 2 नाइट्रोजन के, 3 एटम्स एक मॉलिक्यूल में। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो जाएंगे? इसको जस्ट किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? मल्टीप्लाइड बाय 3 0 0. This is what? This is number of atoms. And if we were to divide 3 into 6, this is 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 zeros are 0, and 3 6 is how much? 18. Divided by 22400 multiplied by 10 raised to the power 23 atoms. If we just if we write this as 1.8066, so 10 will get multiplied here. एक हम इसमें से 10 कम करें तो एक 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22400। अगर हम एक और बार पीछे करें तो एक और 10 लग जाएगा, या एक 10 हम यहाँ से ले लें, इसको रख दें 10 raised to the power 22, यहाँ पे ले लें, या फिर 100 लिखते हैं इसको। 2 zeros से 2 zeros कैंसिल, सो दिस विल बी द आंसर। दिस इज़ नथिंग बट जस्ट टू मैच विथ द ऑप्शंस गिवन। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स निकालने। ये वाला विच वन ऑप्शन इज दिस? बी। दिस इज ऑप्शन ए। अब तो आप समझ ही हो कि ऑल ऑफ द अबव है, बट स्टिल सी वाला भी एक बार करके देख लेते हैं। N2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 7 2s हाउ मच? 14। पहले N2O में इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन के हो गए 7 एटॉमिक नंबर इंटू 2 दैट इज़ 14, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 उसमें होंगे इलेक्ट्रॉन। 7 2s 14, 14 plus 8 is how much? 22 electrons are there in one molecule of N2O. Now in this much molecule of N2O, how much electrons will be there? Multiplied by 22. So the number of electrons will be equal to how much? 1/22400 multiplied by 6.022 into 10 raised to the power 23 multiplied by how much? 22. If we multiply this by this, what value is coming? 6022 multiplied by 22. 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 0 0, 2 6 are 12, 12044. This is, and point कितने के बाद लगना है? 3 के बाद. So this is 132.484 divided by 22400 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power 23. अगर हम पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करें, 1.32 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 22400 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power 23.
2 zeros and 2 zeros will get cancelled, so the answer will be 1.32 into 10 raised to the power 23 electrons. So the correct option is all of the above, option D. Ratio of Cp by Cv of a gas is 1.4. When the ratio of Cp upon Cv is 1.4, the gas is what? Gas is diatomic. यानी एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे? 2. और नंबर ऑफ एटम्स निकालने, तो यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल. नंबर ऑफ मोल इज़ वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम. वॉल्यूम इज़ व्हाट? 11.2 and molar volume is how much? 22.4. so this is 1/2. this is 0.5 mole. 0.5 मोल आ गए, तो अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ़ एटम्स. पहले नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ़ मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर 10 raised to the power 23. This is what? This is molecules. Now we need to calculate number of atoms. एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2. तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो जाएंगे? मल्टीप्लाइड बाय 2. 10 raised to the power 23 multiplied by 2. This is what? This is atoms. 5 2s is how much? 10. एक के बाद पॉइंट लगेगा, so answer is 10 raised to the power 23 atoms. So answer is option A.